एक इंग्लैंड बैठा होया है, एक अमेरिका बैठा होया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से बरतानिया के सिक्योरिटी सोर्सेज ने बाकायदा तौर पर जियो न्यूज को तस्दीक करते हुए कहा है कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को जो साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग है उनके एक यूनिट ने उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सरकार कल दी सोशल मीडिया ते खप पई हुई है कि आदिल राजा फड़िया गया। बड़ी चंगी गल है आदिल राजा अगर फड़िया गया है लंडन च, क्योंकि आदिल राजा एक इंतहाई घटिया इंसान है जो कि अदारियां दे बारे च गंदियां बकवास गल्लां करदा है ते पाकिस्तानी अदारियां नूं लंडन च बह के बदनाम कर रहा है। ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂ XYZ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲੀਜ਼ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵੀਲੌਗਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਦਿਲ ਰਾजा बड़ा सही है, आदिल राजा ने पेशन गोई की, आदिल राजा ने वो पेशन गोई की थी। जो सेक्शन 59 है वो इस हवाले से अहम है कि वो देखता है कि जो दहशतगर्दी है, जो बरतानिया का जो ओवरऑल जो टेररिज्म का कानून है उसका जो खास सेक्शन है जो ओवरसीज टेररिज्म से डील करता है, उस हवाले से बरतानिया के कानून में बरतानिया के अंदर जो शख्स होता है उसकी भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है और जो अगर कोई बाहर हो उसकी भी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। वाइड ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਲੌਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। आदिल राजा अदारियां दे बारे च बकवास करता है, शहबाज गिल मुल्क दे बारे च बकवास करता है, दोवां दा प्रोपोगंडा इको ही है। जो जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि उनके सामने मुख्तलिफ जो डोसियर्स है वो पाकिस्तान ने उनके सामने रखे हैं और उसके सामने रखते हुए वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको जारी रखेंगे और फिर जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पर पुलिस जो अपना जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसका जो अनाउंस करेगी। एक इंग्लैंड बैठा होया है, एक अमरीका बैठा होया है, उस प्रोपोगंडे नूं चुक के इत्थे दे जिहड़े पीटीआई दे हवारी ने ते पीटीआई दे जिहड़ी आले यूथ है ਉਹਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟਵੀਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ मुल्क का जो नुकसान हो रहा है या हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। जो क्रेडिबल सिक्योरिटी सोर्स हैं जिन्होंने जो बात की जियो न्यूज से उनका यह कहना है कि जो ऑपरेशन था आदिल राजा को वो कंडक्ट किया है साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने और ये कि इस ऑपरेशन का लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस या स्कॉटलैंड यार्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर से हमारी बात हुई उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को जो बरतानिया का काउंटर टेररिज्म एक्ट है 2000 उसके सेक्शन 59 के तहत गिरफ्तार किया गया और जो सेक्शन 59 काउंटर टेररिज्म एक्ट 2000 है ये ओवरसीज पे होने वाला जो टेररिज्म है ये उससे डील करता है। इन पर्टिकुलर
पर कोट अनकोट जो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने हमें यह बताया है कि आदिल राजा के ऊपर इल्जाम यह है, और ये सिर्फ इल्जाम है, कि उन्होंने बरतानिया की सरजमीन से उन्होंने एक फॉरेन कंट्री में होली और पार्टली उन्होंने टेररिज्म और वायलेंस इंसाइट किया है। यानी ये कि आदिल राजा को बरतानिया से होते हुए उन्होंने पाकिस्तान में ये इल्जाम है कि उन्होंने वहां पर लोगों को उकसाया कि वो पुरतशद्दुद या वायलेंट कार्रवाइयों में या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लें। जो सिक्योरिटी सोर्स है उसने हमें इस बात की भी तस्दीक की है कि आदिल राजा को 3 महीने के लिए बेल दी गई है, यानी सितंबर की एक तारीख है, मिड सितंबर की एक तारीख है, जिसमें उनको दोबारा पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। इन द मीनवाइल पुलिस के जो इंटेलिजेंस सोर्स है उनका यह कहना है कि पुलिस जो साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिस यूनिट है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। यह भी इस बात की भी हमें तस्दीक हुई है कि आदिल राजा को बरतानिया में जो पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जो कंप्लेंट्स लगाई गई, उसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया। इन पर्टिकुलर जो 9 मई के वाकयात से उसके हवाले से भी आदिल राजा के खिलाफ यहां पर कंप्लेंट्स दायर की गई, जिसके बाद आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया। इसमें पावर्स हैं। यह भी हमें जराए ने बताया कि जब आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं की और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो उनको कोई मसला नहीं है, वो अपना इंटरव्यू देंगे पुलिस को। उनके साथ उन्होंने कोऑपरेट किया। ऑन रिकॉर्ड उनका इंटरव्यू हुआ पुलिस स्टेशन में, जिस इंटरव्यू के दौरान आदिल राजा ने सख्ती से तरदीद की कि उनका दहशतगर्दी से या वायलेंस से कभी किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। आदिल राजा ने जो हमें जराए कि जहां बता रहे बरतानी जराए, उन्होंने कहा कि वो वायलेंस पर यकीन नहीं रखते और ये कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने वायलेंस नहीं किया, उसको इंसाइट नहीं किया, बल्कि यह भी बताया कि वो एक्चुअली वायलेंस के विक्टिम है, वो इसके परपिट्रेटर नहीं है। और यही बात आदिल राजा ने जब उनको बेल मिली उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी कहा। यह बताना यहां पर जरूरी है कि आदिल राजा इस हवाले से वो और उनके जो करीबी जराए हैं और उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा, और आदिल राजा का भी ये स्टांस है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ये कि वो किसी भी किस्म की जो वायलेंट स्ट्रगल है वो उसको अपोज करते हैं और ये कि वो पुरअमन जमहूरी तरीकों पर यकीन रखते हैं तब्दीली के लिए।